Good afternoon, students. Myself, Subham Mishra, and welcome to my YouTube channel, Power of Physics by Subham sir. Today is the lecture 2, motion. Yesterday we have to taught the topic motion, definition of motion, definition of rest, the concept of distance, and the concept of displacement. Today's topic is what is the concept of speed? You know what is the concept of speed? Students, listen carefully. What is the concept of speed? आप जनरली डेली लाइफ में स्पीड का वर्ड का यूज करते हैं कि इतनी स्पीड से वो जा रहा है, इतनी स्पीड से वो चल रहा है। आप स्पीड के बारे में बच्चों को बताते हैं, लेकिन आप जनरली स्पीड होती क्या है ये आप नहीं जानते। और यहाँ पर हम एक चीज और आपको कंसिडर करेंगे, वेलोसिटी। यहाँ पर हम वेलोसिटी को भी कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम स्पीड को कंसिडर करेंगे और उसके थ्रू हम वेलोसिटी को भी कंसिडर करेंगे। So the speed is the definition of speed is the distance upon time. Speed is denoted by v is equal to distance upon time. If you have to the body cover some distance and divide the time, taking the body cover the distance, so the speed is the ratio of the distance upon time is called speed. Distance is denoted by small d and the time is denoted by small t. So the velocity is denoted by v. This is the small v is equal to d by t. What is the unit of speed? The unit of speed is meter per second. Okay. Again, we have to reach the topic of the velocity. What is velocity? Yes, the velocity is denoted by v, but the velocity is vector quantity v because velocity is hold magnitude and direction both, so it is a vector quantity. And velocity is also equal to the displacement is denoted by vector x, and it is denoted and divide the time t. So this is the condition of velocity and this is the condition of speed. But the main thing that the difference between is the speed and the velocity is speed is always equal to or greater than velocity. You have also noticed that, or you have also learned the trick of the distance and displacement. Yesterday topic you have also the given topic, the distance and displacement are the clearly concept and the same behavior of the distance and displacement and comes from the velocity and speed. स्पीड बच्चों क्या होता है कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और v इज इक्वल टू डी बाई टी जिसका मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ पर भी स्पीड में जो यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसका एक डेफिनेट डायरेक्शन होता है, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है और इसकी यूनिट हम मीटर पर सेकंड लिखते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। ओके, यहाँ पर स्पीड की जब बात होती है तो हमेशा हम डिस्टेंस को जनरेट करते हैं, हमेशा हम डिस्टेंस को जनरेट करते हैं। और यहाँ पर जब वेलोसिटी की बात होती है तो हमेशा हम डिस्प्लेसमेंट को जनरेट करते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन इन दोनों केस में डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी जीरो नहीं हो सकता। उसी केस में डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो सेम थिंग डिस्प्लेसमेंट को जो करता है ये सीधे वेलोसिटी के पास जाएगा। हालांकि जो वेलोसिटी है वो भी जीरो हो सकती है, प्लस में हो सकती है, निगेटिव में हो सकती है, लेकिन जो स्पीड है वो हमेशा पॉजिटिव में होगी, कभी जीरो नहीं हो सकती या कभी निगेटिव। Okay, students, this is the main thing of speed and velocity, and also the types of speed and velocity. So we have to reach the topic of types of velocity and speed. So listen carefully. Types of velocity and speed also. What is the types of speed? What is the types of speed? Types of speed and the types of velocity. Types of velocity. The speed is divided into two parts. First is the uniform speed. First is the uniform speed. And second is the non-uniform speed.
नॉन यूनिफॉर्म। Okay, students. Again, the same behavior of the velocity is first is uniform velocity, uniform velocity, and the second thing is non-uniform. Okay, students. So the uniform speed is, what is the definition of uniform speed? Is if the body covers, if the body covers, body covers equal distance, equal distance in equal interval of time, in equal interval of time. Okay, students, equal interval of time. यूनिफॉर्म स्पीड में बॉडी कवर्स unequal distance in equal interval of time. What is the uniform velocity? Body covers equal distance in equal time interval, in definite direction. This is also choose the word direction, so that when you have to choose the word direction, this is the uniform velocity. Again, unequal in equal interval of time, in equal interval of time, definite direction. Okay, firstly listen carefully. The type of speed is uniform speed if the body covers equal distance in equal interval of time. What is the meaning of this statement? The meaning of is this statement is that अगर कोई बॉडी है और हर टाइम के इंटरवल में उस बॉडी का अगर डिस्टेंस जो है वो बदल नहीं रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप 12 बजे, मान लीजिए आप 12 बजे लखनऊ से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, वहाँ की डिस्टेंस आपको 20 मीटर, वहाँ की डिस्टेंस आपको लगभग मान के चलिए 346 मीटर आपको मिल रही है। और अगेन जब आप नेक्स्ट उसके अगले दिन जब आप कहते हैं 12 बजे अगेन चल रहे हैं दिल्ली से लखनऊ की तरफ, तो भी आपको जो डिस्टेंस मिल रही है वो 346 मीटर मिल रही है। तो इसका मतलब आप अपने गिवन टाइम इंटरवल में डिस्टेंस आप वही दे रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आपको सेम मिल रही है। सो व्हेन वी हैव टू इक्वल डिस्टेंस कवर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब किसी भी कंडीशन में टाइम इंटरवल कैसा भी हो, एक इक्वल टाइम इंटरवल पे इस डिस्टेंस जो है कोई चेंज नहीं। सेम उसी कंडीशन में इक्वल डिस्टेंस या यूज द वर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट, आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी चेंज नहीं होगा इक्वल टाइम इंटरवल में, उसकी डायरेक्शन होगी। व्हेन वी हैव टू टेक एग्जांपल, द वेलोसिटी कैन नेवर बी चेंज इन ऑल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म स्पीड। एंड व्हेन वी हैव टू चेंज द वेलोसिटी, somebody covers the distance from Lucknow to Delhi in equal interval of time, so I am giving the direction, मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, डायरेक्शन बता रहा हूँ। तो जब डायरेक्शन की बात आती है तो यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक बात हम और कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, द बॉडी कवर्स अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो बॉडी है वो बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है टाइम के साथ। अगर वो बॉडी की स्पीड जैसे 346 मीटर थी, अगेन वो 2 मीटर या प्लस 2 मीटर या प्लस 3 मीटर बढ़ गई तो 347 हो गई या 349 हो गई, तो इस कंडीशन में वेलोसिटी अनइक्वल में है। लेकिन यहाँ पे अगर डेफिनेट डायरेक्शन हो जाएगा तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी and not uniform speed. So listen carefully. The word velocity is only have to put the direction, and the word speed is only put the magnitude, not the direction. This is the big difference between velocity and the big difference between speed. Okay. So today's lecture is over, and again the given topic, next topic is average velocity and average speed, instantaneous velocity and instantaneous speed. So listen. Average velocity.
द एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होता है? सपोज आप मान के चलिए कि जैसे एवरेज वेलोसिटी है, तो एक लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में जब हम किसी वेलोसिटी को डील करते हैं तो उसे हम लोग एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी में लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में कोई ना कोई डायरेक्शन होगी तो उसे हम लोग एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। और एवरेज वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं वेक्टर वी एवरेज से, और इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। उसी तरीके से एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो एवरेज स्पीड भी एक लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में स्पीड निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ पर डायरेक्शन नहीं होगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड होगा, और इसको हम लोग बी एवरेज से डिनोट करेंगे, और इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सपोज बॉडी कवर्स, suppose body covers the distance from A point to B point is V1, no, B1, and again from B to C it covers D2. D1 take a time T1 and D2 take a time T2. So the V average is equal to total distance V1 plus D2 upon T1 plus T2. Okay friends, this is the main formula. This is the main formula. Again, what is the instantaneous speed and what is the instantaneous velocity? Suppose आप कोई जगह जा रहे होते हैं और किसी पर्टिकुलर स्टैंड पे, जैसे कि मैंने कहा कि किसी मेडिकल शॉप के पास आपकी उस समय की स्पीड क्या रही, एक गिवन एक छोटे से टाइम इंटरवल में आपकी स्पीड क्या रही। तो ऐसे टाइम की स्पीड को मेजर करने के लिए हम स्पीड जब मेजर करते हैं तो ऐसी स्पीड जनरली व्हीकल्स में होते हैं जिससे हम लोग स्पीडोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम लोग स्पीडोमीटर बोलते हैं। और जो डिस्टेंस को मेजर करता है उसे हम लोग ऑडोमीटर बोलते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि स्पीडोमीटर जो कवर करता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड एक छोटे से टाइम इंटरवल पे, इवन की 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड और समथिंग स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे मेजर करने वाली स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। और स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में हम वेलोसिटी को मेजर करने वाले को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। बस इतना याद रखिए कि जब कभी एवरेज की बात आती है तो एक लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम पे हम देखते हैं चीज़ों को, और जब कभी इंस्टेंटेनियस आता है तो एट अ पर्टिकुलर मोमेंट पर्टिकुलर टाइम पे हम इसकी बात करते हैं। तो बच्चों, आज हमने आपको स्पीड के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एवरेज वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ स्पीड, एवरेज स्पीड के बारे में आपको बताया। अगले लेक्चर्स में हम जनरली ग्राफिकल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे ही हमारा ये थ्योरी पार्ट खत्म होगा फिर हम इसमें टोटल 15 न्यूमेरिकल्स इस लेक्चर सीरीज में लेकर आएंगे, और 15 न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और ऐसे ही पावर ऑफ फिजिक्स के साथ बने रहें। थैंक यू।